As we all know, the result of COVID-19, education has changed dramatically with the distinctive rise of e-learning, whereby teaching is undertaken remotely and on digital platform. The Internet of Things enable transformation from teacher-centric education to student-centric education, is reinventing the education. E-learning is revolutionizing our education system as it remains the only option during the ongoing crisis. But in the meanwhile, we must not forget the cyber safety also. The points which we will be discussing in this session will be what is cyber safety, cyber crime, what are the do's and the don'ts which we must follow, malware attacks, types of malwares, protection against Google Pay frauds, UPI fraud awareness, and whom to report if the crime is being committed. That means अगर आपके ऊपर में किसी ने साइबर क्राइम कर दिया या आप फंस गए हो किसी तरह के फ्रॉड में तो आप किसको रिपोर्ट करोगे साइबर एथिक्स एंड द लास्ट साइबर हाइजीन जिसके लिए हमने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया है that you are going to like. So let us begin. What is cyber safety? Cyber safety actually refers to safe and responsible use of internet to ensure safety and security of personal information and not posing threat to anyone else's information. Safety और सेफली ब्राउजिंग द वेब हम लोग कैसे इंटरनेट को सेफली ब्राउज कर सकते हैं these days we must know the threats while browsing the web. Safe browsing on web needs you to know many things like what are the possible dangers, how to avoid these dangers, and how to virtually conduct yourself while browsing web. And one more thing, one most important thing, you must remember not only every site you visit is safe, whatever you post or do online is visible to others also. Not everything you see or is promised online is true. जो भी देखते हैं इंटरनेट पर सब कुछ या हर कुछ सही नहीं होता. We should protect our identity while using internet. We surf internet for variety of reasons, from teaching online, जो कि अभी हम लोग कर ही रहे हैं अभी भी चल रहा है हालांकि ऑफलाइन स्कूल चालू हो चुके हैं लेकिन अभी भी ऑनलाइन टीचिंग इज गोइंग ऑन यूजिंग सोशल मीडिया बाइंग सेलिंग गुड्स टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन when we give private data to business and other internet users such as while filling online forms or making payment online we trust them to use the information for legitimate purposes. These information can be used for harmful reasons like hacking, stalking, and identity frauds. Identity fraud is when person details that have been accessed or stolen are used to commit fraudulent acts. ये सब चीज से हम लोग को बचना है किसी भी तरह से हम लोग फंस सकते हैं नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ आइडेंटिटी फ्रॉड द मोस्ट कॉमन सॉल्यूशन टू दिस इज प्राइवेट ब्राउजिंग आप में से बहुत जन इस्तेमाल भी कर रहे होंगे प्राइवेट ब्राउजिंग और एनोनिमस ब्राउजिंग को अगर नहीं कर रहे हैं तो वी मस्ट नो अबाउट दिस व्हाट इज प्राइवेट ब्राउजिंग और इसके फायदे क्या हैं एनोनिमस ब्राउजिंग या फिर प्राइवेट ब्राउजिंग आप बोल लीजिए all that we discussed earlier of identity leakage is resolved by either anonymous or private browsing. Anonymous browsing allows user to view website without revealing any personal information of user like IP address. IP address उस मशीन का एड्रेस होता है आप जिस पे बैठ करके काम कर रहे होते हैं जो अटैकर्स है उस मशीन को एक्सेस कर सकते हैं उसको लोकेट कर सकते हैं मशीन टाइप एंड लोकेशंस. An anonymous browser lets user access website anonymously. Private browsing. There are other ways to use internet without revealing our search history and share our data. हम लोग कुछ भी जो सर्च करते हैं कुछ भी एक्सेस करते हैं ऑनलाइन वो सब कुछ दिखता है हैकर्स को. इनकॉग्निटो ब्राउजिंग के मदद से या फिर प्राइवेट ब्राउजिंग के मदद से हम लोग इसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं. और इसको ओपन कैसे करना है Open up a version of browser that will not attack your activity. It's particularly useful if you are entering sensitive data like bank details into the browsers as it can minimize the risk of our information being saved to that computer. That means अगर आप किसी भी
ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो बेटर आप इनकॉग्निटो मोड पर ऑन करें उसको, अपने ब्राउजर को, और अपने सारे बैंकिंग डिटेल्स आराम से आप उसमें एंटर कर सकते हो। दैट मीन्स वो सेफ ब्राउजिंग है। और अगर आप गूगल क्रोम यूज कर रहे हो, गूगल क्रोम में आप शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एन प्रेस करके इस इनकॉग्निटो मोड को आप ऑन कर सकते हो। दिखेगा कैसा वो? नॉर्मल गूगल क्रोम से अलग दिखेगा, कुछ हद तक ऐसा दिखेगा जैसा आपके स्क्रीन पर अभी आपको दिख रहा है। इट्स पर्टिकुलरली यूजफुल इफ यू आर एंटरिंग सेंसिटिव डेटा लाइक बैंक डिटेल्स। बहुत सेंसिटिव डेटा अगर आप एंटर कर रहे हो तो बेटर है आप इनकॉग्निटो ब्राउजिंग यूज करके ही करें। Practices to ensure confidentiality of information. यूज फायरवॉल वेर एवर पॉसिबल। फायरवॉल क्या है? ये भी एक तरह का एंटीवायरस है। वी मस्ट सिक्योर आवर सिस्टम सच दैट ओनली ऑथेंटिक यूजर्स कैन कनेक्ट टू इट। फायरवॉल इज वन गुड सॉल्यूशन फॉर दिस। इट्स अ टाइप ऑफ एंटीवायरस जो आपके कंप्यूटर में पहले से है, और अगर आपने कोई अच्छा कंपनी का एंटीवायरस इंस्टॉल कर रखा है तो उसके साथ भी ये सॉफ्टवेयर फ्री आता है। उसके अलावा फायरवॉल एक डिवाइस भी है। अगर आप किसी कंपनी को बिलोंग कर रहे हैं तो वो कंपनी उस फायरवॉल डिवाइस को भी अपने कंप्यूटर्स पर, सर्वर्स पर लगा सकते हैं। कंट्रोल ब्राउजर सेटिंग्स टू ब्लॉक ट्रैकिंग। हम लोग जो भी वेबसाइट्स पर एक्सेस करते हैं हर कुछ ट्रैक किया जा सकता है, इसको हमें कंट्रोल करना चाहिए। टू मिनिमाइज द थ्रेट वी कैन टर्न आवर डिफॉल्ट सेटिंग टू एक्सक्लूड थर्ड पार्टी कुकीज। जो थर्ड पार्टी कुकीज है हमारी सारी एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करती है। थर्ड पार्टी कुकीज क्या है? एक तरह का एक ऐसा एप्लीकेशन, एक ऐसा छोटा सा प्रोग्राम जो हमारी छोटी छोटी एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करके अपने पास स्टोर कर लेती है और इसके बनाने वाले को वो सेंड कर देती है। तो सारा आपका डिटेल्स जो है पैकेज में उस बनाने वाले को पहुंच जाता है। ब्राउज प्राइवेटली वेन एवर पॉसिबल। अगर आप कोई भी सेंसिटिव डेटा पुट करने जा रहे हो तो बेटर है कि आप प्राइवेटली ब्राउज करें, क्योंकि उसके अंदर में कुछ भी सेव नहीं होता। टू अवॉइड द ट्रैकिंग एज डिस्कस अर्लियर, ट्राई टू ब्राउज एनोनिमसली और प्राइवेटली। बी केयरफुल वाइल पोस्टिंग ऑन इंटरनेट। हम लोग इंटरनेट पर कुछ भी पोस्ट करने से पहले आप 100 बार सोच लें। नेवर पोस्ट क्रूशियल इंफॉर्मेशन लाइक योर पर्सनल डिटेल्स such as address, mobile phone numbers, bank details, especially credit card details, etc. on public internet site. इसके अलावा भी हम और भी कहेंगे कि अगर जैसे छोटे मोटे सर्वेज वगैरह जो आते हैं, जो अक्सर हम लोग को मिल जाता है, ये सर्वे हो रहा है, वो सर्वे हो रहा है, हम लोग को इंफॉर्मेशन मांगा जाता है, तो इंफॉर्मेशन के नाम पर वो डेटाज कलेक्ट कर रहे हैं। हम तो कहेंगे कि ऐसे इंफॉर्मेशन सर्विस से भी हमें बचना चाहिए। अगर हमें उनका ऑथेंटिसिटी नहीं पता कि वो किस सोर्स से आ रहा है, सिंपली उसको फॉरवर्ड कर देना और बिना उसकी ऑथेंटिसिटी को जाने, ये भी एक तरह का साइबर क्राइम है। इंश्योर सेफ साइट while entering crucial information. While entering our given crucial information like passwords, bank details, always ensure the website is working on। आप ध्यान रखें कि वो वेबसाइट जो है HTTPS पर काम कर रहा है। HTTPS सिक्योर्ड साइट को रिप्रेजेंट करता है। HTTPS means the website is secure, that is सिक्योर सॉकेट लेयर। एक एक्स्ट्रा लेयर उसमें अटैच कर दिया जाता है जिसके चलते आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी लेवल हाई हो जाती है। दैट मीन्स आपकी हैकिंग थोड़ी सी उस साइट पर कम होगी। नाउ हाउ टू रिकॉग्नाइज विच ऑल वेबसाइट्स आर HTTPS और सिक्योर्ड। तो अगर आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करोगे तो आपको ये दो चीजों पर ध्यान देनी है। अगर आप अपने इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट क्रूशियल इंफॉर्मेशन अगर आप एंटर करने जा रहे हो तो यू मस्ट लुक फॉर these two things. One is the lock which should be present over there. एक ताले का सिंबल आपको दिखना चाहिए। दूसरा HTTPS लिखा हुआ दिखना चाहिए। अगर नहीं है तो अगर फिर भी वो बैंकिंग साइट दिख रही है तो भी वो फ्रॉड है। तो आपको इस तरह की वेबसाइट से बचना चाहिए।
Now, practices to ensure confidentiality of information. Avoid using public computers. हमें public computers जैसे कि cafes वगैरह में या फिर कोई होटल्स वगैरह में किसी भी कंप्यूटर्स को ऐसे ही इस्तेमाल नहीं कर लेना चाहिए. Always try not to use the public computers, especially if you have to deal with your crucial data. But if it is an urgency, then we must remember the following points. अगर फिर भी कभी बहुत जरूरत है तो हमें ये पॉइंट्स जरूर ध्यान में रखने चाहिए. तो what are the points? Browse privately. Never save your login information. IDs या पासवर्ड हमें अपनी लॉगिन इंफॉर्मेशन दैट इज आईडी हो गई पासवर्ड हो गई कभी भी सेव नहीं करनी चाहिए. वो क्या है सेव करना वो भी हम आपको बताएंगे कि सेव कैसे हो जाती है. अवॉइड एंटरिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन. डू नॉट लीव कंप्यूटर्स अनअटेंडेड. Public computers, of course, with sensitive information on the screen. Disable the features that store passwords. There are some softwares which are pre-installed on those public computers which can record your passwords without your information. That means आपको बिना बताए अगर आप पब्लिक कंप्यूटर्स पर यूज कर रहे हैं तो वो पासवर्ड्स भी रिकॉर्ड किए जा सकते हैं. इवन इफ यू आर एंटरिंग सीक्रेटली आपको भले वो एस्ट्रिक 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 दिख रहे हैं आपको वो पासवर्ड्स एस्ट्रिक्स में दिख रहे हैं लेकिन फिर भी वो सॉफ्टवेयर उनको ट्रेस आउट करके आराम से स्टोर कर सकता है. इरेज हिस्ट्री एंड ट्रेसेस ऑफ योर वर्क. क्लियर हिस्ट्रीज एंड कुकीज. अगर आप फिर भी यूज कर रहे हैं तो कोशिश करें कि हिस्ट्री क्लियर कर दें. कुकीज को डिलीट कर दें. लुक फॉर एनी सस्पिशियस डिवाइसेस कनेक्टेड टू द कंप्यूटर. कंप्यूटर में अगर कोई एक्स्ट्रा डिवाइसेस कनेक्टेड है तो उसे भी जरूर ध्यान दें कि वो क्या है. नाउ व्हाट इज अ साइबर क्राइम. ये तो आई थिंक मैक्सिमम ऑफ us know what is a cyber crime, but still I want to throw some light on this. You can say it is a criminal offense that is facilitated by or involves use of electronic communication of information system including any electronic device, computer or internet. It involves इसके अंदर में क्या क्या आता है. Phishing, credit card frauds, illegal downloading, child pornography, cyberbullying, cyber stalking, cyber terrorism, creation and or distribution of viruses, spams, and so on. Everything comes under cybercrime. Now we are talking about cybercrime. So India has become the favorite destination for cybercrime since this COVID-19. That means जब से COVID-19 आया है तब से आपको पता है कि नहीं मेरे को नहीं पता but India has become the favorite destination for cyber criminals. With the pandemic disrupting business, with remote working becoming reality, cybercriminals have been busy exploiting vulnerabilities. Year 2020 saw one of the largest number of data breach. Data breach means data stealing, data ka chori, and the number seems to be only rising. According to Kaspersky telemetry, with the world went into lockdown in March 2020, the total number of cyber attacks jumped from 93.1 million worldwide to 277.4 million. That means three times you can say कि जब आपका लॉकडाउन हुआ मार्च में तो साइबर अटैक्स सिंपली it became three times. That means it was an increase of 197%. The number in India went from 1.3 million in February to 3.3 million in March. That means in 1 month there was a three times rise. तीन गुना बढ़ गया ये साइबर अटैक्स. From April 2020 onwards, monthly attacks never dipped below 300 millions. It was a shocking for me also. And they reached a new high of 409 million attacks worldwide in November 2020. In July only 2020, India recorded the highest number of attacks at 4.5 million.
In February 2021, nearly 1 year from the start of pandemic, there were 377.5 million cyber brute force attack. Brute force क्या है? एक तरह का सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए हैकिंग होता है. India alone witnessed 9.04 million attacks in February. एक ही महीने में 9.4 मिलियन अटैक्स इंडिया झेला in the year 2021. The total number of attacks recorded in India during January and February 2021 was around 15 million. The lack of clear, और इस सब का कारण क्या है? It was the lack of clear regulatory framework and policy execution impact our country's overall cyber hygiene. ना आप सोच रहे होगे कि ये पता कैसे चलेगा कि साइबर अटैक्स हो भी रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे पता चलेगा? तो आई केम अक्रॉस दीज टू वेबसाइट्स जो अभी ऑन गोइंग साइबर अटैक्स के बारे में अक्रॉस द वर्ल्ड एट द मोमेंट आपको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं. नाउ लेट अस सी ऑल दिस व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, हाउ साइबर अटैक्स आर बीइंग कमिटेड, विच ऑल कंट्रीज आर, और कहां से कौन सी देश से कहां पर साइबर अटैक्स हो रहे हैं. लेट अस सी. सबसे पहले इस लिंक को हम कॉपी करते हैं. आई एम स्टॉपिंग माय प्रेजेंटेशन एंड मूविंग ऑन टू द वेब ब्राउजर. जस्ट वेट. We will be returning back to our presentation back, but before that I want to show you how at the moment the cyber attackers are still active. और अभी आपको दिख रहा होगा यूनाइटेड स्टेट्स से यूनाइटेड किंगडम की तरफ अटैक्स हो रहे हैं. कौन से देश किस तरफ अटैक हो रहा है, कहाँ अटैक्स हो रहा है, कौन कौन से जगह पर अटैक्स हो रहा है, सब कुछ इट्स वेरी क्लियर. और आपको इसके साथ ही अदर इंफॉर्मेशन भी दिखेंगी, जैसे टॉप टारगेटेड कंट्रीज अभी कौन से हैं. आई विल बी शेयरिंग विथ यू द वेब एड्रेस. अगर आप में से कोई इसको देखना चाहता है लाइव, तो ये गेम की तरह दिख रहा है भले हम लोगों को, बट इट्स सीरियस. लाइक top targeted countries over here is Mongolia, Nepal, Indonesia, Angola, and Georgia. The top targeted industries are education on the top, very topmost. सबसे ऊपर में एजुकेशन इंडस्ट्री सबसे पहले टारगेट में है. सेकंड जो हैकर्स और टारगेट कर रहे हैं, अटैकर्स टारगेट कर रहे हैं, वो है गवर्नमेंट एंड हेल्थ केयर. ये तीन सबसे बड़े इंडस्ट्रीज है जिनको अटैकर्स और हैकर्स टारगेट कर रहे हैं. और क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? मेलवेयर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि एडवेयर्स, बैकडोर्स, बॉटनेट्स, रैंसमवेयर्स. तो आपके व्यूज हम लास्ट में जानेंगे. फिलहाल वी आर अगेन स्विचिंग ओवर टू आवर प्रेजेंटेशन, बिकॉज ये तो आपको देखने में वीडियो गेम जैसा ही दिखेगा. Yes, the second one is also a similar type of website, which is also showing us how the attackers are active around the world. Moving on. What else is cybercrime? Like cyber trolls, cyber bullying, harassing, demeaning, embarrassing, defaming, or intimidating someone using modern terminologies like internet, cell phone, instant messengers, social networks. These are all cyberbullying. That means bullying तो आपको पता ही है क्या है, बट अगर हम टेक्नोलॉजी की मदद से किसी को बुली कर रहे हैं तो दैट इज टर्म्ड एज साइबर बुलिंग. Cyber stalking. It's a kind of online harassment where the victim is subjected to barrage of online messages and emails. Online बहुत सारे messages और emails उसको push कर दिए जाते हैं टारगेट की तरफ. This is cyber stalking. Spreading of rumors online is also cyber crime. कभी कभी हम में से बहुत जनों ने फेक प्रोफाइल बना रखी है, या फिर स्टूडेंट्स भी कभी कभी फेक प्रोफाइल बना के रख देते हैं. बहुत अच्छी बात है जब तक कि वो किसी खराब काम के लिए इस्तेमाल ना की जाए. People often think that they can make a fake profile with some different name and do anything online and will not be caught. Through such fake profile, people sometimes indulge in posing false information on social media. A comment could hurt others or spread rumors that may trigger panic or hurt religion sentiment of other peoples, resulting into clashes or even riots. हम लोगों ने इसका बहुत इंडिया में बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखा है कि राइट्स कभी कभी इस तरह की फेक रूमर्स से भी हो जाती है.
स्प्रेडिंग रूमर्स और फेक न्यूज, हम में से बहुत जन भी ऐसे हैं जो इन फेक न्यूज के चक्कर में पड़ जाते हैं। बिना उन न्यूज की ऑथेंटिसिटी जाने हम लोग उसको फॉरवर्ड भी कर देते हैं, ग्रुप्स में फॉरवर्ड कर देते हैं, इंडिविजुअल पर्संस को फॉरवर्ड कर देते हैं। लेकिन सबसे पहले आप किसी भी न्यूज को फॉरवर्ड करने से पहले प्लीज डू चेक वेदर इट इज ऑथेंटिक और नॉट, क्योंकि आप जिसको फॉरवर्ड कर रहे हैं हो सकता है वो इसको सीरियसली ले ले। Spreading rumors or fake news online is a cybercrime and it may invite a fine with imprisonment extendable up to 3 years. So you have to serious about it. Now, some do's and don'ts, जो हम लोग को कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम लोग को करनी चाहिए और कुछ नहीं करनी चाहिए। साइबर सिक्योरिटी इज द शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी पर्सन, हर एक का उतना ही रिस्पॉन्सिबल हाथ इसमें है, किसी एक जन को आप नहीं बोल सकते कि ये तुम्हारा काम है। द फॉलोइंग डूज एंड डोंट्स हेल्प रिमाइंड अस ऑल ऑफ actions we must take to remain vigilant. Let us discuss about the do's and don'ts. वैसे तो बहुत सारे हैं। साइबर सिक्योरिटी डूज, सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल आई थिंक इज ऑलवेज यूज हार्ड टू गेस पासवर्ड और फ्रेजेस। हम लोग किसी भी इंफॉर्मेशन को सिंपल ना रखें, इंफॉर्मेशन इन द सेंस पासवर्ड्स को सिंपल ना रखें। पासवर्ड शुड हैव अ मिनिमम ऑफ 10 कैरेक्टर्स यूजिंग uppercase letters, capital letters, small letters, numbers, special characters like question mark, underscore, minus, plus, at the rate, percentage, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर का आप इस्तेमाल करें to make it easy for you to remember but hard for an attacker to guess। ऐसा पासवर्ड चुने जो आपके लिए तो आसान हो बट जो अटैकर है उसके लिए उसको सोच पाना भी मुश्किल हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई फ्रेज के बारे सोचें, कोई लाइन के बारे सोचे। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल आपके लिए है, माई सन्स बर्थडे इज 12 दिसंबर 2004। अब इसको यूज किया गया है पासवर्ड के तौर पर। कैसे? यू माइट यूज लाइक MSBI 12/DEC, 4, इसको पासवर्ड के तौर पर आपने याद कर लिया एक फ्रेज को, तो इसको गेस कर पाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। ऑलवेज यूज डिफरेंट पासवर्ड फॉर डिफरेंट अकाउंट्स, कि अगर बाई चांस कोई एक हैक हो गया है तो ऐसा ना हो कि सारे के सारे कॉम्प्रोमाइज हो जाएं। इफ वन पासवर्ड गेट हैक्ड योर अदर अकाउंट्स आर नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड। ऑलवेज कीप योर पासवर्ड और फ्रेजेस कॉन्फिडेंशियल। आप अपने पासवर्ड्स और जो भी फ्रेजेस हैं आप जो नॉर्मली यूज करते हैं उनको कॉन्फिडेंशियल रखें। चेंज योर पासवर्ड एवरी 90 days। परफॉर्म रेगुलर बैकअप्स ऑफ इंपॉर्टेंट डेटा। फिजिकली सिक्योर योर लैपटॉप, अगर आप लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने लैपटॉप को जरूर सिक्योर करें। ऑलवेज पे अटेंशन टू द फिशिंग ट्रैप्स इन द ईमेल। ईमेल के अंदर में बहुत सारे ऐसे ट्रैप्स आते हैं, ऐसे मैसेजेस आते हैं, ऐसे मेल्स आते हैं जो आपको फंसाने के लिए होते हैं, उनसे सावधान रहें। ऑलवेज डिस्ट्रॉय इंफॉर्मेशन प्रॉपरली व्हेन इट इज नो लॉन्गर नीडेड। Always be aware of your surrounding when discussing sensitive information. Always lock your computer and mobile phone when not in use। अगर आप फोन या मोबाइल फोन या कंप्यूटर लैपटॉप अगर इस्तेमाल ना कर रहे हो तो उनको लॉक अवश्य कर दें। दिस प्रोटेक्ट्स डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाता है। फॉर इसका एक और भी रीजन है, आपको हम बोलेंगे कि अगर आप अपने फोन मोबाइल फोन को लॉक करके रखेंगे तो मे बी कभी हो सकता है कि बाई चांस गलती से आपका फोन कहीं गिर जाए या चोरी हो जाए। अगर वो फोन लॉक ही नहीं होगा तो आपको उसका सिर्फ फोन का ही नुकसान नहीं होगा, उसके साथ में बहुत सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी चोरी हो जाएगी। बिकॉज आज के दिन जैसे मोबाइल फोन स्मार्ट हो गए हैं हम लोग अनस्मार्ट होते चले जा रहे हैं। वी आर कीपिंग आवर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इन आवर मोबाइल फोन्स लाइक आधार कार्ड, like some phone passwords, like ईमेल पासवर्ड्स, बैंकिंग पासवर्ड्स, ये सब भी आप में से या हम में से बहुत जन सेव करके रख देते हैं जो कि सही नहीं है। तो इसलिए अगर आप अपने फोन को अनलॉक रखेंगे, सिंपल लॉक्स रखेंगे तो यू आर इन डेंजर। साइबर सिक्योरिटी डूज, अवॉइड यूजिंग पब्लिक वाईफाई
हॉटस्पॉट, हम में से बहुत जन ऐसे हैं जहां पर पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट मिल जाता है तो एंजॉय करते हैं, बट ये भूल जाते हैं कि वो वाईफाई ट्रैप्स हो सकते हैं, बिकॉज दोज वाईफाई कैन हैव अ सॉफ्टवेयर विच when your device is connected to them, they can hack your devices and they can get back sensitive information from your devices. तो अगर आप कोई भी हॉटस्पॉट फोकट वाला को अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 100 बार सोचें उनके साथ कनेक्ट होने से, कि कुछ डेटा बचाने के लिए आप इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन तो कहीं नहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे अपना. नेवर क्लिक ऑन द लिंक्स फ्रॉम एन अनट्रस्टेड सोर्स. Close window containing pop-ups, ads or unexpected warnings by clicking on the close button. क्रॉस वाला जो रेड वाला बटन होता है ऊपर में, उस पर क्लिक करके उसको क्लोज करें, ना कि सेंटर में. सेंटर में बहुत सारे पॉपअप्स के सेंटर में कुछ बटन्स आ जाते हैं, ओके आ जाता है, कभी मे बी लेटर आ जाता है, इस तरह के आ जाता है. तो जब आप कोई भी पॉपअप्स देखें अपने एक्सप्लोरर विंडो पर, तो ढूंढने की क्लोज बटन कहाँ है, क्रॉस बटन कहाँ है, उस पर क्लिक करें. बीच में किसी बटन पर ना क्लिक करें, नहीं तो वो पॉपअप्स आपको दूसरे वेबसाइट्स पर ले जाएगी, नहीं तो वो आपकी इंफॉर्मेशन जो उस पर्टिकुलर वेबसाइट में आपने एंटर किया है वो भी चुरा सकती है. साइबर सिक्योरिटी डूज, सम मोर डूज. यूज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग को ध्यान देनी है कि वी हैव टू यूज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. अपडेट इट ऑन रेगुलर बेसिस. हम लोग में से बहुत जन अपने मोबाइल फोन के अपडेट्स भी बंद करके रख देते हैं कि डेटा खर्चा होता है. ये नहीं करना है. अपडेट इट ऑन रेगुलर बेसिस टू रिकॉग्नाइज द लेटेस्ट थ्रेट. रेगुलर अपडेट योर ऑपरेटिंग सिस्टम्स, वेब ब्राउजर्स एंड अदर मेजर सॉफ्टवेयर. दूसरे जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, we must have a practice of updating them on a regular basis. Set Windows or Mac updates to auto download. हम लोगों ने मैक्सिमम जनों ने ऑटो डाउनलोड किया, ऐसे भी डाउनलोड को ऑफ करके रखा हुआ है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ. सेव अटैचमेंट्स टू डिस्क बिफोर ओपनिंग देम. इफ यू आर गेटिंग एनी अटैचमेंट इन योर ईमेल्स, लाइक अगर आपको कोई अटैचमेंट भेजा है ईमेल पर और अगर आपको उस पर डाउट हो रहा है, दैट मीन्स आपको वो अटैचमेंट तो डाउनलोड मतलब देखना ही है, लेकिन फिर भी आप डाउट के नजर से देख रहे हो, तो बेटर डाउनलोड इट देन टू डायरेक्टली ओपन इट इन द ब्राउजर. ब्राउजर पर अगर आप किसी अटैचमेंट को ओपन करोगे तो वहां पर स्कैन करने की फैसिलिटी नहीं के बराबर होती है या फिर बहुत कम होती है. हालांकि स्कैन वहां भी होता है, ऑनलाइन स्कैन्स होते हैं, लेकिन वो बहुत कमजोर स्कैनिंग होती है वहां पर. तो बेटर डाउनलोड इट इन योर सिस्टम एंड देन योर एंटीवायरस विल ऑटोमेटिकली स्कैन इट. ठीक है, जैसे ही आप उसको डाउनलोड करोगे, दैट पर्टिकुलर फाइल विल बी ऑटोमेटिकली स्कैन्ड बाय द एंटीवायरस विच यू आर हैविंग इन योर सिस्टम. और हम तो यही कहेंगे कि बेटर हैव अ गुड एंटीवायरस. Don't think about the price. Have a good antivirus in your system, because your data, your confidential material is more precious than the price you are paying for the antivirus. Cyber security don't, but we are going to not going to follow. That means please refrain from opening an email attachment, even from someone you know well, unless you were expecting it. जब तक कि आप किसी से उम्मीद ना कर रहे हो कि इसके पास से कोई मेल आ रहा है या मेल आने वाला है, उसके अटैचमेंट्स को ना खोल करके देखें. अवॉइड क्रिएटिंग कॉमन पासवर्ड्स. बार बार इसकी वार्निंग. सच एज योर नेम, सोशल सिक्योरिटी, यूएनआई, etc. Do not leave your laptops unattended even for a few minutes. Never select remember my password option. Many applications do not store them securely. हम में से बहुत जन ये करते हैं कि अगर अपने कंप्यूटर्स पर बार बार ईमेल ओपन कर रहे हैं तो डेली पासवर्ड एंटर ना करना पड़े तो सेव ही कर लेते हैं. तो ठीक है, अगर आप अपने प्राइवेट कंप्यूटर्स पर सेव कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है. कभी कभी हम लोग उसको गलती से पब्लिक कंप्यूटर्स या फिर वैसे कंप्यूटर जिसमें आपके अलावा और भी कोई आकर के बैठता है, यूज करता है, वैसे कंप्यूटर्स पर अगर आप रिमेंबर माय पासवर्ड ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है. प्लीज क्लिक ऑन नेवर, देन ऑन सेव.
सेव पर ना क्लिक करें, नेवर पर क्लिक करें, सो दैट योर पासवर्ड डू नॉट गेट स्टोर्ड इन दैट पर्टिकुलर कंप्यूटर। तो आप में से बहुत जन सोच रहे होंगे कि अगर सेव भी कर देंगे तो थोड़ी दिखेगा, बट दिखेगा। That can be seen by the person whoever knows computer very well. That password can be fetched from that particular browser easily. आराम से उसको फेच किया जा सकता है उस पर्टिकुलर ब्राउजर से, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपने नहीं बताया, लेकिन उस ब्राउजर ने बता दिया कि आपका पासवर्ड क्या है, अगर आपने सेव करके रखा है वहां पर तो। Cyber security don'ts: never reply to email requesting financial or personal information. Avoid opening emails or email attachments from unknown senders. We must not install or use pirated copies of softwares. Never set your email program to auto open attachment. Pirated copies के बारे में बात करेंगे। हमारे इंडिया में तो मैक्सिमम सॉफ्टवेयर्स वी आर यूजिंग पायरेटेड, पर स्टिल हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि वी शुड नॉट यूज पायरेटेड कॉपीज ऑफ सॉफ्टवेयर्स। मेलवेयर्स, सबसे खतरनाक चीज मेलवेयर्स। मेलवेयर्स, हाउ टू स्टे प्रोटेक्टेड फ्रॉम मेलवेयर अटैक्स, क्योंकि सब कुछ जो भी ऑनलाइन हो रहा है साइबर अटैक्स, वो सारे मेलवेयर्स के जरिए हो रहे हैं। और कुछ डेंजरस मेलवेयर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ एग्जांपल्स के साथ में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, व्हाट आर मेलवेयर्स? Malwares are, you can say, malicious softwares or a type of file or a type of program typically delivered over a network that infects, explores, steals whatever attackers want। जो भी अटैकर ने प्लान किया होगा, प्लान करके उस प्रोग्राम को लिखा होगा, वो प्रोग्राम कर देता है। Malware usually has one of the following objective। इनमें से किसी न किसी एक ऑब्जेक्टिव को लेकर के मेलवेयर्स बनाए जाते हैं। Provide remote control for an attacker to use an infected machine. Send spam from the infected machine to any target. Investigate the infected user local network. Steal sensitive data. अब कुछ मेलवेयर्स तो वैसे बहुत सारे हैं, 9-10 तरह के हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट मेलवेयर्स के बारे में वी विल बी डिस्कसिंग ओनली टुडे, like the adwares, the spywares, the viruses, worms and trojan, but maximum of you are familiar with this word only, virus। हम लोग में से मैक्सिमम जन सिर्फ एक ही वर्ड को जानता है और पहचानता है, वो है वायरस। इसके अलावा भी बहुत सारे डेंजरस है टर्म्स। वर्म्स, आपको पिक्चर्स बहुत फनी दिख रही होगी, वो सारी कलेक्शंस की गई है ऑनलाइन इंटरनेट से। Worms. Worm is a standalone malware computer program that replicates itself in order to spread to other computer. It often uses a computer network to spread itself, rely on security failures on the target computer to access. It will use the machine as a host to scan and infect other computers। In simple words, मैं आपको बता दूं कि worms ऐसे प्रोग्राम हैं जिनको दूसरे किसी फाइल्स की जरूरत नहीं पड़ती दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल टर्म में आपको मैं बता दूं कि सपोज मेरे कंप्यूटर में आई एम हैविंग वर्म इन माय कंप्यूटर, ठीक है, एंड यू आर यूजिंग अ पेन ड्राइव फॉर कॉपिंग और पेस्टिंग एनी फाइल इन माय कंप्यूटर। मेरे कंप्यूटर में आपने उस पेन ड्राइव को लगा दिया, and even if you have not copied or pasted any file from my computer, the worm from my computer will be simply moving on from my computer to your pen drive, and then when you are using that pen drive in any computer, that will be transferred over there also। मतलब इवन इफ आप कोई भी फाइल का मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, तब भी वर्म आपकी पेन ड्राइव में आ सकता है, आपके पेन ड्राइव से दूसरे में जा सकता है। और सिर्फ पेन ड्राइव ही नहीं, जो भी कंप्यूटर नेटवर्क्स में है वहां तक ये फैल सकता है। इसी तरह का एक बहुत खतरनाक वर्म फैलाया गया था यूएस, अमेरिका और इजरायली इंटेलिजेंस द्वारा, जिसका नाम था स्टक्सनेट। The name of that worm was Stuxnet. It was designed by US and Israeli intelligence forces with the intent of setting back Iran's nuclear program। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम को फेल करने के लिए ये वर्म डेवलप किया था अमेरिका और इजरायली इंटेलिजेंस मिलकर के।
और ये डेवलप हुआ था 2005 में, जिसको ईरान नहीं पकड़ पाया 2010 तक। मूविंग ऑन टू ट्रोजन। ट्रोजन और ट्रोजन हॉर्सेस, कभी कभी इसको ट्रोजन हॉर्स बोला जाता है, कभी ट्रोजन कहा जाता है। ये भी एक तरह का मेलवेयर है जो दिखने में तो काम का सॉफ्टवेयर लगता है, और हम लोग इसको खुद से डाउनलोड करते हैं अपने कंप्यूटर पर। कभी कभी ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो लगते हैं कि हमारा पर्पस को सॉल्व कर देंगे, ऐसे सॉफ्टवेयर के रूप में ट्रोजन आ जाते हैं। दैट मीन्स ये खुद से नहीं आते, वी आर द वंस हु आर डाउनलोडिंग इट, एंड देन आफ्टर इंस्टॉलेशन पता चलता है कि जो डाउनलोड हुआ है वो तो ट्रोजन आ गया है। इवन अगर आपके कंप्यूटर में एंटीवायरसेस है तभी आपको पता चलेगा, अगर एंटीवायरस नहीं है तो भी पता नहीं चलेगा, तो आपके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चोरी होना शुरू हो जाएगा। So what is a Trojan? You can say it's a type of malicious code or software that looks legitimate but can take control of your computer. A Trojan is designed to damage, disrupt, steal your data or network. A Trojan acts like a bona fide application or file to trick you. It seeks to deceive you into loading and executing the malware on your device. आपके कंप्यूटर में धोखे से ये दूसरे malware भी डालना शुरू कर देता है बिना आपकी परमिशन के। अब एग्जाम्पल का बात कर लेते हैं। तो इमोटनेट नाम का एक ट्रोजन जो कि बैंकिंग सेक्टर में इंस्टॉल्ड है, आज भी है, और इसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। इमोट नेट नाम का ट्रोजन बैंकिंग के अंदर में, और ये है 2014 से, जिसको पकड़ पाना अभी भी मुश्किल है। इट इज हार्ड टू फाइट इमोटनेट बिकॉज इट इवेड्स सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन। मूविंग ऑन, कमिंग ऑन टू वायरसेस, द मोस्ट कॉमन टर्म विच वी ऑल नो। सबसे ज्यादा जिसके बारे में हम लोग जानते हैं वो है वायरसेस के बारे में, तो इसलिए इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको नहीं दूंगा। वायरस इज अ piece of code that insert into itself into an application executes when the application run। वायरस के साथ में ऐसा है कि ये किसी न किसी एप्लीकेशन के साथ में चिपक जाता है, और जिस एप्लीकेशन के साथ में चिपक जाता है उस एप्लीकेशन को जब आप एग्जीक्यूट करते हो या फिर उसको शेयर करते हो किसी के साथ में, तो वो वायरस उसके पास भी पहुंच जाता है और वहां से फिर आगे बढ़ता है। Once inside a network, a virus may be used to steal sensitive data। रैंसमवेयर सबसे ज्यादा डेंजरस कहेंगे रैंसमवेयर्स को, बिकॉज ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में या किसी सिस्टम में घुस जाए तो एक तरह का ये किडनैपिंग वाला काम करता है। दैट मीन्स आपके कंप्यूटर को किडनैप कर लेता है और लॉक कर देता है, और बदले में आपसे चाहता है पेमेंट, और उस पेमेंट को लेने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका कंप्यूटर अनलॉक हो जाएगा या फिर पूरी तरह से अनलॉक हो जाएगा। Ransomware क्या है? It's a software that uses encryption to disable a target's access to its data until a ransom is paid. The victim organization is rendered partially or totally unable to operate until it pays, but there is no guarantee that payment will result in the necessary decryption or that the decryption key provided will function properly। कोई गारंटी नहीं है कि आपने पेमेंट कर दिया उसके बाद भी आप छूट जाएंगे। अब इसका भी एग्जांपल देख लिया जाए। एग्जांपल हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, लेकिन एक स्टडी के मुताबिक, इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, रैंसमवेयर अटैक्स वर्ल्ड वाइड हैव इंक्रीज्ड बाय 102% इन 2021, द ईयर 2021 कंपेयर टू 2020। 2020 से 2021 में इंक्रीज कितने परसेंट हुआ? 102% इंक्रीज हो गया। रैंसमवेयर अटैक्स आर इंक्रीजिंग इन नंबर एंड इंटेंसिटी एवरी पासिंग ईयर। अब कुछ रैंसमवेयर के भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। इन इंडिया ओनली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड, यहाँ पर वर्ल्ड के बारे नहीं बात कर रहे हैं, इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। तेलंगाना एंड आंध्र पावर यूटिलिटीज वर हैक्ड बाय अ रैंसमवेयर। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम was hacked by a ransomware and rupees 1 crore was demanded in return। Even BSNL was also attacked by a ransomware and nearly 60,000 modems became dysfunctional after the malware attack। WannaCry, जो कंप्यूटर जानते हैं उनको पता होगा, ये WannaCry नाम का ransomware भी सही में बहुत जनों को रुलाया था।
स्पाईवेयर्स, कमिंग ऑन टू स्पाईवेयर्स, नाम से ही पता लग रहा है कि करता क्या होगा। स्पाई करता है, जासूसी करता है। Spyware collects information about users' activity without their knowledge or consent. This can include passwords, PIN, payment information, and unstructured messages. और स्पाईवेयर में हमारा देश भी पीछे नहीं है। फेगासस के बारे में आपने सुना होगा, नहीं सुना तो बेहतर है कि आप नेट पर जाकर के सर्च करें। फेगासस वाज अ स्पाईवेयर विच वर विच वाज आई थिंक यूज्ड इन इंडिया आल्सो। अब इसके बारे में जान लेते हैं फेगासस है क्या चीज। फेगासस इज अ स्पाईवेयर डेवलप्ड बाय इजरायली साइबर आर्म्स कंपनी। इजरायली का साइबर आर्म्स कंपनी एनएसओ नाम का ग्रुप का, उन्होंने ये स्पाईवेयर को डेवलप किया। That can be secretly installed on any mobile phone running any version of iOS or Android. Pegasus was capable of reading text messages, tracking cells, tracking calls, collecting passwords, location tracking, accessing the target device's microphone। आपके बिना नॉलेज के ही आपके फोन का माइक्रोफोन ऑन हो जा सकता था। आपके फोन का माइक्रोफोन ऑन हो जाना मतलब आपका जो भी बातचीत है वो भी रिकॉर्ड हो सकता है। Cameras and harvesting information from the app. In India, it was said to be used. इसके बारे में और भी बहुत सारा रिसर्च किया मैंने, बट यहाँ आपके साथ में मैं नहीं शेयर कर पा रहा हूँ ड्यू टू सम रीजंस। एडवेयर्स, एडवेयर नाम से पता चल रहा है एडवेयर्स मतलब कुछ एडवर्टीजमेंट को रिलेटेड जरूर होगा। यस ऑफ कोर्स एडवर्टीजमेंट को रिलेटेड ही लेकर के है ये मेलवेयर। Adware tracks a user's surfing activity to determine which ad to serve them। कौन से ad किनको पसंद आते हैं, किनको दिखाने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी वेबसाइट पर शूज परचेज करने के लिए सर्फिंग कर रहे हैं तो अगले ही दिन मेरे को शूज के ऐड आने शुरू हो जाएंगे। आप में से बहुत जनों ने नोटिस किया होगा ये चीज। अगर हम कोई ड्रेस परचेज करने के लिए कोई वेबसाइट को सर्च कर रहे हैं तो नेक्स्ट डे हमको ड्रेसेस के एड्स आने शुरू हो जाएंगे। तो कॉमन है ये। दैट मीन्स ये एडवेयर का कमाल है सारा। ऑल्दो एडवेयर इज सिमिलर टू स्पाईवेयर, हालांकि ये सिमिलर टू स्पाईवेयर, आपका स्पाई कर रहा है, आपकी जासूसी कर रहा है। इट डज नॉट इंस्टॉल एनी सॉफ्टवेयर, बट ये आपके कंप्यूटर पर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर रहा ऑन यूजर्स कंप्यूटर, नॉट डज इट कैप्चर की स्ट्रोक्स। अब कुछ एडवेयर के एग्जांपल्स भी देख लेते हैं, हर एक के एग्जांपल जैसे देख रहे हैं। तो एडवेयर कॉल्ड फायरबॉल, फायरबॉल नाम का एक एडवेयर था, इन्फेक्टेड 250 मिलियन कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस इन द ईयर 2017। ये किया क्या? इट हाईजैक्ड ब्राउजर्स, ब्राउजर्स को ये हाईजैक कर लिया। और किया क्या इसके बदले हाईजैक करके? किया ये कि अगर आप कुछ भी सर्च करने जाते थे तो ये अपने सर्च इंजन की तरफ आपको डाइवर्ट कर देता था, अपनी वेबसाइट्स की तरफ आपको डाइवर्ट कर देता था। मतलब आप जो नहीं ढूंढना चाहते वहां भी पहुंच जाते थे, जहां आप नहीं जाना चाहते वहां भी पहुंच जाते थे। ये करता था और कुछ नहीं। फिशिंग अटैक, हालांकि इसके बारे में भी बहुत सारा डिटेल्स मैंने कलेक्ट किया, लेकिन बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम शॉर्टकट में मैं आपको बता रहा हूं। फिशिंग अटैक आर द practice of sending fraudulent communication that appears to come from reputed sources। reputed sources से हम लोग को लगता है कभी कभी कोई मैसेजेस आ रहा है, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मेरे को फेसबुक से कोई मैसेज आया है कि आपका यूजर नेम या पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज हो गया है, तो आप इस लिंक को क्लिक करके उसको रिसेट करें। कभी ऐसा ना करें। अगर आपको करना है तो उस लिंक पर एटलीस्ट क्लिक करके ना करें। आप फेसबुक अकाउंट पर जाएं, वहां से नॉर्मल तरीके से उसको चेंज करें, लेकिन नेवर क्लिक ऑन एनी लिंक्स विच आर कमिंग इन योर मेल्स फॉर चेंजिंग पासवर्ड्स। नेवर। It is usually done through emails. The goal is to steal sensitive data like credit card, login information, or to install malware on the victim machine.
Phishing is common type of cyber attacks that everyone should know about in order to protect themselves. कुछ कॉमन टर्म्स है फिशिंग का भी, ज्यादा डिटेल्स मैंने इसके बारे में नहीं दिया, लाइक डिसेप्टिव फिशिंग, वेलिंग, स्पीयर फिशिंग, विशिंग, स्मिशिंग, फार्मिंग, ये अलग अलग टर्म्स इस्तेमाल किए गए, मकसद सबका एक। मूविंग ऑन, प्रोटेक्शन अगेन फ्रॉड इन गूगल पेज। आप गूगल पे में सुनते आए दिन न्यूज़पेपर में भी फ्रॉड हो गया, तो उन फ्रॉड से बचना कैसे है, तो उसके लिए एक छोटा सा वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा मैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। बिकॉज इतने देर से लेक्चर दे रहा हूं तो थोड़ा सा हॉल्ट देता हूं और आपको एक आपके साथ में एक वीडियो शेयर करता हूं। प्रेजेंटेशन स्टॉप कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन विजिबल है, एक बार 1 मिनट, यस, लेट मी स्टार्ट। Welcome. At Google Pay, we consider it our highest responsibility to safeguard your hard-earned money and protect you from payment frauds. In this video, we share some tips that you should always keep in mind. Your UPI PIN is only needed to send money and check balance. Receiving payments needs no PIN. In case someone asks you to enter your PIN, it means you are approving an outward payment. That is, you are sending money from your bank account. Be cautious of sharing your UPI PIN on websites or forms sent to you via a link. Keep your UPI PIN safe. Never share it with anyone. It is important to pay attention to all aspects of the transaction. Don't make the transaction while distracted or under pressure from someone on the phone. Hang up the phone and report the user immediately. Never transfer funds without confirming a person's identity. Only download trusted apps. Harmful apps can access personal information including your payment details you type on your screen. Find genuine support details in the help or support section of your Google Pay app. Avoid untrusted numbers which may be listed on the internet. Official toll-free number 1-800-419-0157. एक और वीडियो है यूपीआई ऐप के लिए ही, लेट मी शेयर दैट आल्सो। Frauds can happen on any regular day through a phone call, like, Congratulations, sir! You have won a 2 crore lottery. Please share your UPI ID and UPI PIN details. Congrats, sir! We are upgrading your credit limit on your mobile connection. Simply need to do is send an SMS. Sir, you won prize money worth rupees 2 lakhs. Simply accept the collect request we've sent to your UPI ID and pay. Sir, there seems to be suspicious activity on your account. We have sent you an OTP to register your account against any frauds. Share the OTP with us immediately. Sir, your debit card shows fraudulent activity and withdrawals. Quickly share your debit card details. Fraudsters prey on customers through such exciting or threatening calls and end up getting access to account details, but sharing is not always caring. One must stay cautious. One can easily avoid such situations by not sharing their details or taking any action pertaining to their account. Registering a new SIM card or share any OTPs when a caller asks them. Remember, any institution of repute will not call or ask you for these details ever. Here are simple do's and don'ts to secure yourself from fraud. Do not share debit card, OTP or UPI details on the phone. Do not send any SMS to any unknown number with unknown codes. Never send money to unknown sources. Do not ever post your transaction details on social media platforms. Contact your bank or telecom company to report any suspicious activity. For any other questions or queries, visit nearest bank branch or telecom operator office before taking any action. Issued in public interest, powered by NPCI. One more surprising information is there for you. The email addresses which we are using, which I think every one of us are using, maybe those email addresses have been compromised. Compromised in the sense they have been hacked. आपको ये पता ही नहीं है कि आपका email address भी हो सकता है हैक हो गया हो। तो there is a website haveibeenpwned.com
नाम का ये वेबसाइट है जो बताएगा कि आपका ईमेल एड्रेस सही में हैक हुआ है या नहीं हुआ है। और अगर आप बोलेंगे कि ये कितना ऑथेंटिक है, हाउ मच ऑथेंटिसिटी दिस पर्टिकुलर वेबसाइट इज हैविंग, तो उसके बारे में भी हम आपको बता दें कि ये जिस बंदे ने इसको डेवलप किया है, ही इज द रीजनल डायरेक्टर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एंड हिज नेम इज ट्रॉय हंट, most valuable professional awardee for developing or developer security, blogger to toyhunt.com, the international speaker on web security and the author of many top-rated security courses for web developers on Pluralsites. So let me show you whether my email address have been hacked or compromised or not. Even you can check your phone numbers also. आपको मैं फिर से एक बार प्रेजेंटेशन स्टॉप करके दोबारा से दिखाता हूं, because my email address was compromised. Have I been pawned? So like my email address is तो जैसे मैंने अपना ईमेल एड्रेस टाइप किया, इस पर क्लिक किया, इट इज गोइंग टू शो मी कि मेरा ईमेल एड्रेस सही में कॉम्प्रोमाइज हुआ है या नहीं। तो आई एम गेटिंग अ मैसेज, ओ नो इट हैज बीन पॉन्ड। तो उसके बारे में डिटेल्स भी आपको मिल जाएगा। तो मेरा ईमेल एड्रेस चोरी हुआ है लिंक्डइन के जरिए। दैट मीन्स 2014 में, 2012 में लिंक्डइन का मैक्सिमम डेटा ब्रीच हुआ था, चोरी हुआ था, उसमें मेरा ईमेल एड्रेस भी चोरी हो गया था। तो लाइकवाइज हम अगर अपने स्कूल ईमेल एड्रेस डाल करके देखते हैं, गुड न्यूज, नॉट फाउंड, दैट मीन्स ये सेफ है अभी भी। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया। आप अपने ईमेल एड्रेसेस को इसी तरह से चेक करें। अगर वो भी कॉम्प्रोमाइज हुए हैं तो एक अलार्मिंग मैसेज है आपके लिए कि आप, समय आ गया है कि उसका पासवर्ड आप चेंज करें। सम मोर इंफॉर्मेटिव मैसेजेस लाइक रिसेंट डेटा ब्रीचेस, डेटा चोरी जो रिसेंटली हुआ है, 2.5 मिलियन फ्रॉम एयरटेल, जिसके अंदर में नेम, डेट ऑफ बर्थ, फोन नंबर, एड्रेस, आधार नंबर, ये सब बिक्री के लिए था, सेल के लिए था। कहां पर? डार्क वेब पर। डीप वेब या डार्क वेब जहां पर अटैकर्स एक्टिव रहते हैं, वहां पर ये बिकने के लिए तैयार था। मोबिक्विक, जिसके बारे में आप भी जानते हैं, क्या है ये, 3.5 मिलियन इसका भी रिकॉर्ड सेल हुआ है। बिग बास्केट, इसके बारे में भी आप जानते हैं, ये सेल के लिए $40,000 के लिए बिका। अन अकेडमी, एड्स आप देखते होंगे, इसने भी अपने यूजर्स का नेम, पासवर्ड, ईमेल नंबर्स कॉम्प्रोमाइज किया। जस्ट पे, एंड देयर आर मेनी मोर्स, बट वी आर moving up with time. At the end, I will just like to share a small presentation, and after that I will be ending my session. So please, जो प्रेजेंटेशन आखिरी मैंने बनाया है उसको भी आप देख लें। It's on cyber hygiene like COVID-19. Thank you everyone, and that's all from my side.